हेलो, आज हम बात करेंगे एसिड और बेस। तथा व्हाट आर एसिड्स? एनी सब्सटेंस विच लिबरेट्स H प्लस आयंस। आयंस के बारे में आपने पढ़ा था 9th क्लास में। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, चाहे वो प्लस चार्ज का हो या माइनस चार्ज का हो, उसको कहते हैं ये क्या है, आयन। तो एनी सब्सटेंस विच लिबरेट्स आयन इन एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जब उसको पानी में मिला दिया जाए। एनी सब्सटेंस विच लिबरेट्स आयन इन एक्वस कंडीशंस इज कॉल्ड एसिड। तथा एसिड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि नॉर्मल डे में भी हम कई एसिड जो है यूज करते हैं, कई एसिड जो है हम अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो the substance which liberates H plus ions in aqueous condition are called acids, and they have some common properties. These are the properties of acids. These are not, it is not the definition. Definition ये है कि the substance which liberates H plus ions in aqueous condition is called acid. All acids have some common properties. One of them is that they have sour taste. खट्टे होते हैं वो। जैसे लेमन है, नींबू है। नींबू क्या है, सॉर टेस्ट है, तो नींबू में भी क्या प्रेजेंट है, एसिड। विनेगर, विनेगर सिरका जिसको कहते हैं, वो भी क्या है, सॉर टेस्ट, वो भी क्या है, एसिड। तो ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब whenever metals react with acid they liberate hydrogen gas, and in fact this is a test for metals. अगर आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करोगे तो you will get hydrogen gas which will burn with pop sound. And when they react with metal carbonates or metal bicarbonate, अब metal carbonate में कार्बोनेट क्या है, कार्बन। So when they react with metal carbonate or metal bicarbonate they liberate carbon dioxide gas. And the test for carbon dioxide gas is that it turns lime water milky. Sorry for the interruption. The test for carbon dioxide gas is that it turns lime water milky. अब broadly the acids have been classified into mineral acids and organic acids. Mineral acids are those which are prepared from the minerals which are obtained from the earth, and they are artificially prepared in the laboratory. For example, HNO3 nitric acid, HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid. Mineral acids are obtained from the mineral of the earth, and they are prepared artificially in the laboratory. They are synthetic, man-made. And organic acids are those which are present in the organic substances, present in the vegetables, present in the animals. Yes, animals also contain acid. Some of the animals they sting, डंक मारते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए। जैसे बी है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या मारती है आपको, डंक। उसके डंक में भी क्या है, एसिड। ठीक है, कहता जैसे लेमन में क्या है, सिट्रिक एसिड। अभी हमने एग्जांपल दिया था कि ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो लेमन में क्या है, सिट्रिक एसिड है। कर्ड में भी क्या है, लैक्टिक एसिड है। जब दूध से दही बनता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जब दूध से दही बनता है तो दही में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। इसीलिए अगर उस दही को या उस कर्ड को आप टाइम से कंज्यूम नहीं करोगे तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, जिसके बाद वो खाने के लायक नहीं रहेगा। टैमरिंड, इमली, इमली में भी क्या है, टारगेटिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मिनरल एसिड्स व्हिच आर यूजुअली मैन-मेड, मोस्टली मैन-मेड, आर्टिफिशियल, एंड देन देयर आर ऑर्गेनिक एसिड्स which are present in vegetables, and some of the animals also produce acid. Then on the basis of the strength we can classify them into strong acids or weak acids. Strong acids are those which completely dissociate on dissolving in water. Let us take example. For example, an acid contains 100 H plus ions
but when we dissolve it in water it liberates only 30 H plus ions. It means it is not liberating all the H plus ions. जितनी H plus ions की कैपेसिटी इसको लिबरेट करने की है, जो उतना H plus ions लिबरेट नहीं कर रहा, तो that case it will be called a weak acid. But strong acid कौन सा हुआ? जिसमें अगर H plus ions है और जैसे ही हमने इसको aqueous कंडीशन में गला पानी को डिसॉल्व किया, it liberates 98 H plus ions या even 100% H plus ions. तो ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं? They are strong acids. And usually the mineral acids are strong acids and organic acids are weak acids. आपकी केमिस्ट्री की लैब में नाइट्रिक एसिड भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम केमिस्ट्री लैब में पाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो द एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या है? जितने भी इसके अंदर आए हैं सब लिबरेट कर देगा अगर एक्वस कंडीशन में, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वो एसिड जो सारे आयंस लिबरेट नहीं करे, कम आयंस लिबरेट करे, अपनी पूरी कैपेसिटी के आयंस को लिबरेट ना करे, दैट इज नोन एज वीक एसिड। देन क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड व्हाट आर डाइल्यूट एसिड्स। गर्मी के दिनों में हम एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक यूज करते हैं घर में, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा एक ड्रिंक है जो हम गर्मी के दिनों में यूज करते हैं, बॉटल में आता है रेड कलर का ड्रिंक है ये, रूह अफ़ज़ा। लेकिन अगर आप कभी ध्यान दो तो कोई भी अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो हम क्या उसको पूरा ग्लास रूह अफ़ज़ा भर के दे देते हैं? नहीं, क्योंकि वो रूह अफ़ज़ा का क्या है? कंसंट्रेट है। हम क्या करते हैं? ग्लास में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालते हैं, बाकी उसमें क्या मिलाते हैं? पानी, और उसको मिक्स करते हैं। यानी कि जो रूह अफ़ज़ा का कंसंट्रेट है उसको हमने क्या कर दिया? डाइल्यूट। आप किसी को भी रूह अफ़ज़ा डाल के डायरेक्टली मिला देते हैं बॉटल में से, क्योंकि रूह अफ़ज़ा की बॉटल में रूह अफ़ज़ा का कंसंट्रेट है, उस कंसंट्रेट में पानी मिला के आप उसको डाइल्यूट करते हो। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? उसकी स्ट्रेंथ को आप थोड़ा सा हल्का करते हो ताकि वो पीने लायक हो जाए। So the acid which contains minimum amount of water in them are known as concentrated acids, and they are very strong acids. अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट होगा तो अगर आप उसको लकड़ी के किसी चीज में गलाओगे तो लकड़ी में वो छेद कर देगा। तो एसिड में बर्निंग सेंसेशन भी होती है, ऑर्गेनिक एसिड में बर्निंग सेंसेशन भी होती है, लेकिन मिनरल एसिड में क्या होती है? बर्निंग सेंसेशन होती है। दे हैव कोरोसिव इफेक्ट। जिस चीज के संपर्क में वो आते हैं उस चीज को जलाते हैं, दे हैव कोरोसिव इफेक्ट। इसलिए कहते हैं कि मेटल कंटेनर में अचार या मेटल कंटेनर में पिकल्स स्टोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि पिकल्स में क्या है? विनेगर है। विनेगर जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके इट प्रोड्यूसेस एसिडिक सब्सटेंसेस, बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है? अगर वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको कोरोड कर देंगे। ऐसे अगर वो हमारी स्किन को लगेंगे तो हमारे को बर्निंग सेंसेशन होगी। और अगर एसिड जो है कंसंट्रेटेड होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो इट माइट बर्न आवर स्किन। तो इट मींस द एसिड व्हिच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड, एंड द एसिड व्हिच कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर या मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड इतना डेंजरस नहीं होता। कहता है लेकिन व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूटिंग द एसिड। अभी हमने बात करी थी क्या कि कंसंट्रेटेड एसिड वो है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? हम एसिड में पानी की मात्रा को बढ़ाएं। लेकिन व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग द एसिड? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम एसिड में पानी को मिलाते हैं या हम पानी में एसिड को मिलाते हैं, वो भी क्या? ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग द एसिड बाय एडिंग द एसिड इनटू द वाटर, दैट आल्सो ड्रॉप बाय ड्रॉप। कहता व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा था, रिएक्शन इन विच हीट इज release is called exothermic reaction. तो mixture of acid and water is a highly exothermic reaction. अगर आप एसिड में पानी मिलाओगे
तो हो सकता है कि इतनी हीट जनरेट हो कि जो टेस्ट ट्यूब है या जो बीकर है वो क्या हो जाए, टूट जाए और एक मिस्ट बन जाए, एक क्लाउड सा बन जाए वहाँ पे एसिड का। जैसे फॉग होता है, धुंध होती है, वैसे एक फॉग सा बन जाएगा एसिड का, which is very harmful for your eyes, your nose and all the mucous membranes. That is why the correct way of diluting the acid is adding acid to water and that also drop by drop. क्योंकि जो हीट जनरेट होगी उसको जो है वो एसिड क्या कर लेगा और वो वाटर क्या कर लेगा absorb. So the correct method of diluting acid is to add acid drop by drop into water so that the heat generated is absorbed by the water and it does not cause harm to anybody. चलो, लेकिन ये तो बात हो गई किसी चीज को खा के हमने बताया कि वो एसिड है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है when they come in contact with acid or base. Such substances which change their color when they come in contact with acid or base are called indicators. And some substances change their smell. So such indicators are called olfactory indicators. So let us study about the substances which change their color. सबसे पहले है लिटमस। लिटमस का जो ओरिजिनल कलर है वो है पर्पल। लिटमस इज लिचन बेसिकली। तो लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल। लेकिन जब इस पर्पल को हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो it becomes blue. And then when this blue litmus is reacted with acid, acid turns blue litmus into red. Acid turns blue litmus into red and base turns purple litmus into blue. इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास ओरिजिनल लिटमस है तो आप उसको एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते, पहले आपको बेस से रिएक्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज बेस? The substance which liberate H plus ions are called acids and the substances which liberate OH minus ions are called bases. So whether the given solution is acidic or basic, एक बहुत common example है basic solution का soap solution. Soap solution is basic in nature. तो अगर आप soap solution पे लिटमस को डालोगे तो लिटमस का कलर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। और फिर उस ब्लू लिटमस को अगर आप लेमन जूस में डाल दोगे, लेमन जूस क्या है? लेमन जूस इज एसिडिक, द ब्लू लिटमस विल टर्न इनटू रेड. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. लेकिन अगर हम लिटमस को ओरिजिनल कलर में लें जो पर्पल है, तो पर्पल कलर जो है वो बेस से रिएक्ट करके क्या बन जाता है? ब्लू. कहता एक तो हो गया लिटमस, फिर उसके बाद एक और है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज जो है अगर हम इसको बेस से रिएक्ट करें तो द ऑरेंज कलर विल चेंज इनटू येलो, और अगर हम इसको एसिड से रिएक्ट करें द ऑरेंज कलर विल चेंज इनटू रेड. अगर हम येलो, ऑरेंज और रेड को एक अपने माइंड में देखें तो ऑरेंज जो है रेड और येलो के बीच का शेड है. ऑरेंज को थोड़ा लाइट कर दो तो येलो बन जाएगा, अगर ऑरेंज को और ज़्यादा डार्क कर दोगे तो रेड बन जाएगा. तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज को अगर बेस से रिएक्ट करोगे तो इट विल बिकम येलो, और अगर मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड से रिएक्ट करोगे तो ऑरेंज कलर से क्या बन जाएगा? ये रेड. ठीक है. अब ये जो एसिड से कांटेक्ट में आने से मिथाइल ऑरेंज रेड बन जाता है, इसका एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो. अगर किसी नाइफ में आपने मिथाइल ऑरेंज लगाया हुआ है और उससे अगर आप लेमन काटोगे तो उस लेमन में से रेड ड्रॉप्स गिरनी शुरू हो जाएंगी. रेड ड्रॉप्स, लाल रंग की बूंदें गिरेंगी. क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज था वो लेमन के अंदर एसिड से रिएक्ट करके क्या बन गया? रेड. इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे फिनोक्सिलीन है. फिनोक्सिलीन का जो कलरलेस लिक्विड होता है, फिनोक्सिलीन का कलर जो है पानी जैसा ही है. एसिड के साथ इसका कलर पानी जैसा ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ इसको आप रिएक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पिंक.
तो ये ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो अपना स्मेल चेंज करते हैं when they come in contact with acid or base। इसके बारे में आप जब मैं नोट्स आपको दूंगा तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। अब कुछ चीजें जो है हमें समझनी है कि what are acids। HNO3 is an acid, H2SO4 is an acid, HCl is an acid, means जहां पे भी हाइड्रोजन है वो एसिड है। तो फिर इस हिसाब से तो H2O भी क्या होना चाहिए, एसिड C6H12O6, जो कि फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, ये भी क्या होना चाहिए, एसिड। तो फिर ये एसिड क्यों नहीं है? The very simple reason behind this is only those substances which liberate H plus ions in aqueous condition are called acids। खाली वही substances जो aqueous condition में क्या liberate करते हैं, H plus ions are called acids, which means water and glucose both contain hydrogen, but when वाटर तो है खुद ही एक्वस है, लेकिन जब ग्लूकोज को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन लिबरेट नहीं करता। खाली अपने फॉर्मूले में अगर हाइड्रोजन का एटम है तो वो सब्सटेंस वो कंपाउंड एसिड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके फॉर्मूला में हाइड्रोजन है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, लेकिन एसिड केवल वही कंपाउंड है जो पानी के अंदर कौन से आयन लिबरेट करे, H प्लस। So water and glucose are example of such two compounds which have hydrogen in them, but still they are not acid। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एसिड्स के बारे में। जैसे एसिड लिबरेट करते हैं H प्लस आयंस, वैसे ही बेसिस क्या लिबरेट करती है, OH आयंस। ठीक है, और इसके मैं नोट्स आपको भेजूंगा, उसको पढ़िए और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं बार बार। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िए, उसके नोट्स पढ़िए, जो नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछिए।